ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. چلو بس غور کر پا میں بس میں کر کے دیکھا لگا لو آج تو کہ نظر آنے میں پتہ نہیں بات کرو جناب دل بھی سن رہی ہو تو بھائی جواب چلو آپ جواب اتنے یاد ہو گیا تو بنا سے بس دیکھ کر دی سہولت آؤ 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 بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں چلو اے آو نہیں جاؤ آپ میرے محترم بھائی اور دوستو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ نے اس دور میں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی قسم اس دور میں جب کوئی اللہ کے گھر میں نہیں آتا پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ خود دروازے میں کھڑا ہو کے اپنے بندوں کا استقبال کر رہا ہے. میرے بندو آج کل تو میرے گھر میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، تم آئے ہو تو اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خود اپنے بندوں کا استقبال کر رہا ہے. اور یہ رات ایسی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ پورا سال رات کو 12 بجے کے بعد اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اس رات میں اللہ پاک سورج غروب ہوتے ہی مغرب کے وقت پہلے آسمان پہ آتا ہے اور وہ آواز جو رات کے آخری حصے میں لگتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے لگوانا شروع کروا دیتے ہیں. مغرب کے وقت سے آواز لگنے لگ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس رات میں اللہ نے ہمیں جمع کیا، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سارے کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ اور ساتھ ہی الحمدللہ. جب یہ دو جملے کوئی بندہ کہتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، یہ جتنا خلا ہے اتنی نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. جو بندہ صرف کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ
करो ही ना, क्या सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात ये है मेरे मोहतरम भाई और बहनों कि हमने अल्लाह के नाम की लज्जत को चखा ही नहीं है। मिठाई की लज्जत को चखा है, वो क्या है तुम्हारे खानदान का भुना खोया, उसकी लज्जत को चखा है। ओए ओए ओए, अल्लाह के नाम की लज्जत ही नहीं चखी, कुरान की लज्जत ही नहीं चखी। अल्लाह, बहुत जरा अल्लाह, जिनमें लज्जत चखी हुई थी ना अल्लाह के नाम की। एक नबी गुजरे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, एक जगह खड़े हुए थे तो एक साइल आया, फकीर मांगने वाला, आगे कहता है जी अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो वो आगे कहने लगे यार तुमने नाम ये ऐसी जात का लिया है, तुझे खाली लौटाना अच्छा नहीं लगता, और हाल ये है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तूने नाम अल्लाह का लिया, होए होए मैं कहां से अल्फाज लाऊं? अदालतों में जाके देखो, अस्पतालों में जाके देखो, अल्लाह का वास्ता दे दे के लोग कहते हैं अल्लाह के वास्ते हम कसूरवार नहीं है, छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते हमारे मरीज को देखो, डॉक्टर से कहते हैं अल्लाह का नाम कितना लावारिस हो गया है, उसकी कदर करने वाले कोई नहीं रहा। और जिन्होंने अल्लाह को पहचाना था, उसके नाम की लज्जत को पहचाना था। दानियाल अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई तूने नाम ऐसी हस्ती का लिया है कि तुझे खाली लौटाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरा हाल ये है कि मेरी जेब में कुछ है ही नहीं। तो तू ऐसे कर, मुझे बाजार में लेके चल और अल्लाह के नाम पे मुझे फरोख्त कर दे, जितने पैसे मिलते हैं उसके नाम पे देना, अल्लाह के नाम पे मुझे भेज दे। उसको क्या पता ये कौन है? उसने कहा ठीक है। उसने हाथ पकड़ा, बाजार में लेके गया और वहां जाके आवाज लगाई गुलाम कोई खरीदेगा? खरीदने वाले ने खरीद लिया, पैसे दे दिए। खरीदने वाले को भी नहीं पता ये कौन है, बेचने वाले को भी नहीं पता ये कौन है। उसने पैसे दिए, चला गया, उसने पैसे दिए, खरीद लिया, खरीद के घर में ले गया। 1 साल पूरा उसके घर की नौकरी करते रहे, 1 साल। 1 साल के बाद तो जिसने खरीदा था उसकी दीवार गिर गई, दीवार गिर गई तो उसने उनके कहा भैया दीवार बनाओ, काजी हाजिर। अब उन्होंने दीवार बनाना शुरू की तो वो कुदरती कहीं से आया, आके क्या देखता है, उसे मिस्री है, वो क्या देखता है, वो तो ठेकेदार है वैसे गुस्ताखी। पानी ना जा भाई, ठीक है? वो तो पानी मुंह में पड़ेगा। तो क्या फरमाया, क्या देखते हैं? दीवार बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं? गारा वो लगाते जा रहे हैं और ईंटें खुद ब खुद लगती चली जा रही हैं। उस आदमी ने देखा जिसने खरीदा था, जब उसने ये मंजर देखा तो उसके तो जैसे कहते हैं ना पांव से जमीन निकल गई, रोने लगा और आके कदमों में गिर गया। कहने लगा जी आप कौन हो? वो कहने लगे जी आपका गुलाम हूँ और तो कुछ नहीं, आपका गुलाम हूँ। वो कहने लगे नहीं नहीं सच बताओ कौन हो? कहने लगे जी आपका गुलाम हूँ। तो फिर उसने कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ तुम कौन हो? तो वो कहने लगे तूने फिर उसी का नाम ले दिया जिसके नाम पे फरोख्त हो गया है, मैं दानियाल हूँ। तो वो रोते रोते गिर गया, कहने लगा आपने ये क्या किया? नबी होकर मैं अदना आदमी की गुलामी करते रहे। कहने लगे एक आया था जिसने उसका नाम लिया था, खाली लौटाना अच्छा नहीं लगा। ये थे जिन्होंने अल्लाह के नाम की लज्जत को चखा हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े बकरियां चरा रहे थे इंसानी शक्ल में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे, जिब्राइल उतरा इंसानी शक्ल में, जिब्रील आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे। वो तो थे इंसान, तो जिब्रील आया इंसानी शक्ल में
اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کہا اللہ، کیا کہا؟ کیا سامنے چاہیے دیوا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ، کیا کہا؟ اللہ۔ اسد آدھے راجہ نا اللہ سے پتہ نہیں کیا ہے، منہ بھر کے کہا کرو اللہ۔ کون؟ اللہ۔ نام اتنا مزیدار ہے، نام اور عجیب بات، کسی نام کے اندر سے ایک حرف نکال دو مطلب بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے۔ میرا نام ہے بلال، با کو ہٹا دو تو لال بن جائے گا، آخری نام کو ہٹا دو تو بلہ بن جائے گا، بندہ بن جائے گا۔ کتنا غلط ہو گیا؟ اب اللہ، اب اس اللہ کا الف ہٹاتے ہیں، اس سے بچتا ہے للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ایک نام ہٹا دیتے ہیں، اس سے بچتا ہے الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب کیا کرتے ہیں؟ الف ہٹاتے ہیں، نام ہٹاتے ہیں، ایک نام کو باقی رکھتے ہیں، تو وہ بچتا ہے لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب کیا کرتے ہیں؟ الف بھی ہٹایا، لام بھی ہٹایا، دوسرا نام بھی ہٹایا، صرف ہا کو باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی بنتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ ہو بھی اللہ اور لہو بھی اللہ اور الہ بھی اللہ اور للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ جو نہ کہا وہ نہ ہوا، پھر نہ بھی اس میں نہ ہوا، جب نہ ہوا خود نہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل نے انسان کی شکل میں کہا اللہ، کیا کہا؟ بولو بار بار کی بولو، کیا کہا؟ اللہ، کیا کہا؟ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو عاشق تھے اللہ کے نام کے، وہ بھی ہماری طرح بھرے ہوئے دل والے تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے عاشق تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او یار ایک دفعہ پھر تو کہہ، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے مفت میں تو نہیں کہوں گا، کچھ لگے گا، کچھ لگے گا۔ کیا لوگے؟ کیا لوگے؟ کیا لوگے؟ کہنے لگے یہ جو بکریاں کھڑی ہوئی ہیں نا، تو آدھی بکریاں دے دو اور میں کہہ دوں گا کیا؟ 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 انہوں نے کہا لے لو آدھی بکریاں اور کہو کیا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو حیران بھی ہو رہا تھا، ناراض بھی نہ ہو رہا کہ مولوی صاحب کی میں نکال کر کے جب مولانا صاحب کہہ رہے تھے یہ لنگر پکایا ہے تے پیسے دو، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اندر جو کچھ نہ رہا، پھر جو دے رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ کیا دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں۔ ادھا اپنے آپ کی انہوں نے بدنام ہی کی تھے جو کچھ پیسے دیتے ہیں، کم از کم لاکھ روپے تک کے قریب خرچ ہوا ہے، اور جو تم نے دیے ہیں ان ناراضی تھی اور آپس سے بیٹھے ہیں نا، تو یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، مسجدوں کے لیے چندے مانگے جائیں۔ کیا کیا خیال ہے؟ ہم نے اپنا گھر بنانے کے لیے کبھی کسی سے چندہ مانگا ہے؟ یا اپنی بیٹے کی شادی کی ہے، لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، کسی سے کہا ہے میں پوتر دے شادی کرنے دا پیا کوئی پیسے دیوائے؟ اللہ کے گھر کتنے لاوارث ہو گئے، اللہ کا دین کتنا لاوارث ہو گیا، اور یہاں تو ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ کوئی ملے ہم اس کے نام پہ دیں، وہ تمہیں تو آگے پوچھنا چاہیے تھا جو انتظامیہ ہے، ہاں بھائی وہ جو خرچ کر رہے ہو کدھر سے کر رہے ہو، کوئی ہمارا حصہ بھی ملاؤ، کوئی ہوتا جو چپکے سے آکے اندر سے پکڑاتا کہ میں اس کو دکھانے کے لیے دے رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ایسے بھی ہوں گے دینے والے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آئندہ اس مسجد میں اس عنوان سے پیسے کٹے کرنا جی پروگرام کرنے میں آتے پیسے لو، جڑے باہر ہوئے بیٹھے مہمانوں کیا سوچے سر
دیوان آلے مر گئے. اگر آپ 5,000 بھی سال کے بعد دیں تو میرے خیال میں تو سارے پاکستان کے ملک ساتھ گنو دیوان آلے دے پیسے پورے تیرے چلے. صرف 5,000 10,000 راجدھانی میں تھے آپ کو چلے گیا. بہرحال یہ اس کا نام میں یہ کہہ رہا تھا کتنا لاوارث ہو گیا جنہوں نے تعلق بنایا ہوا تھا اللہ کے ساتھ, عشق کیا ہوا تھا, دل دیا ہوا تھا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبریل نے کیا کہا بولو ذرا, کیا کہا بولو ذرا, کیا کہا اللہ, کیا کہا اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار ایک دفعہ پھر تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں نا یہ والی دے دو تو میں دوبارہ کیا دیتا ہوں, دوبارہ کیا دیتا ہوں. میں جو بات دوسری طرف لے گیا ہوں نا, جو پیسوں کی طرف لے گیا ہوں وہ یہیں سے لے گیا ہوں کہ کتنے خوش قسمت کو تمہیں اللہ کا نام سنوا رہے ہیں, تمہیں اللہ کا نام مفت میں سنوا رہے ہیں, مفت میں سنوایا جا رہا ہے. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دوسری آدھی بکریاں بھی لے لو اور کہو کیا آپ دوسری آدھی بھی دے دیں. پھر دل کرنے لگا, پھر دل کرنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار ایک دفعہ پھر تو کہو, ایک دفعہ پھر تو کہو کیا کیا کیا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار ایک دفعہ پھر تو کہے. تو جبریل کہنے لگا اب تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, باقی نہ تو ساری ختم ہو گئی, ساری کوئی کی جا کے کھڑا ہو جا تو میں ایسے بیان سنو. تو کیا کہا اب تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سنو جنہوں نے دل اللہ کو دیا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار تو مجھے غریب آدمی نہیں لگتا, تو مجھے مالدار آدمی لگتا ہے. تو ایسے کر ایک دفعہ میرے اللہ کا نام لے, میں زندگی بھر تیرا غلام بن کے تیری بکریاں چلاتا رہوں گا. تو کہہ تو صحیح کیا, کہہ تو صحیح کیا اللہ, کہہ تو صحیح کیا اللہ. کون ہے وہ اللہ؟ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, اللہ تھا. نہ شرق تھا نہ غرب تھا, اللہ تھا. نہ شمال تھا نہ جنوب تھا, اللہ تھا. اللہ وہ اللہ ہے جس کا پہل کوئی نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے جس کا آخر کوئی نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے جس سے اوپر کوئی نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کھانے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو پینے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو تھکن سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو اونگ سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بیوی سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بچوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کپڑے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو زیور سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ ہے اللہ جو ہوا اللہ کے چاہنے سے, جو ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے, جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے. چھری نہیں کاٹتی مگر اللہ کے حکم سے, سانپ نہیں ڈس سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, آگ نہیں جلا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, زمین کچھ نہیں نکال سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, بارش نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, سردی نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, گرمی نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, سمندر نہیں چلتے جب تک اللہ نہ چاہے, پھول نہیں کھلتے جب تک اللہ نہ چاہے, تھنوں سے دودھ نہیں نکلتا جب تک اللہ نہ چاہے, دودھ نہیں بنتا دہی جب تک اللہ نہ چاہے, دہی نہیں بنتا مکھن جب تک اللہ نہ چاہے, مکھن نہیں بنتا گھی جب تک اللہ نہ چاہے. جو ہوا اس کے چاہنے سے, جو ہو رہا اللہ کے چاہنے سے, جو ہوگا تو کس کے چاہنے سے؟ اللہ. اب اس اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بنے, اس لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے, اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے, اس لیے سارا انتظام کیا گیا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ سال کے بعد آؤ, میں ہر دفعہ کہہ کے جاتا ہوں نبی
तकरीर मैं कर सकता हूँ, नई नई तकरीरें कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किताबें भरी पड़ी हैं, अब तो मोबाइल भी किताबों से भरे पड़े हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नई नई तकरीरें उस कौम के लिए होती हैं जो हिदायत याफ्ता हो, जब सब कुछ ही लुट चुका हो। वो जैसे किसी शायर ने कहा था, आई थी कभी बहार चमन में तख्त पर जिस दम शाहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था, गुल था, खुली जब आंख दर के सी, न था जुल्फकार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। कभी वक्त था, ऐसे भी लोग थे। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, जिब्रील उतरा, कहने लगा या रसूल अल्लाह कौन सो तुम्हें, कौन सो तुम्हें? आपने फरमाया क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है, अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो आपने फरमाया वो मेरा साद बीमार था, साद बिन मुआज अंसारी साहबी हैं। आपने फरमाया वो मेरा साद बीमार था, साद। आपने साहबा से कहा चलो पता करें, आपने दौड़ लगाई, साहबा पीछे पीछे चलने लगे। कहा रसूल अल्लाह आहिस्ता चलें, हमारे तो जूते टूटने लगे हैं, हमारे तो जूते टूटने लगे हैं। तो हमारे नबी ने फरमाया जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि साद को फरिश्ते गुस्ल दे दें और हम उसके गुस्ल से महरूम ना हो जाएं। दौड़ते दौड़ते पहुंचे, अब आप कमरे में दाखिल हुए। अब कोई आदमी वहां से अंदर आएगा तो एकदम तो नहीं आ सकता, तो उनको हटाता हुआ फिर अंदर आएगा। तो आप जब दाखिल हुए तो आप ऐसे दाखिल हुए जैसे कमरा भरा हुआ हो, और आप पंजों के ऊपर चलते हुए अंदर दाखिल हुए कमरे में, और चलते 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 गए और ऐसे किनारे के ऊपर जाके ऐसे बैठ गए, चारपाई के किनारे पे ऐसे करके बैठ गए। ऐसे जाके किनारे पे बैठ गए, बिल्कुल चारपाई के किनारे पे ऐसे करके बैठ गए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बंदा कोई है नहीं कमरे में, और ये आप इस तरह अंदर दाखिल हुए और ऐसे किनारे पे जाके बैठ गए। तो हमारे नबी ने फरमाया साद के कमरे में इतने फरिश्ते आए हुए हैं कि मेरे पांव रखने की भी जगह कोई नहीं है, और अब एक फरिश्ते ने पर समेटे हैं और मेरे बैठने की जगह बनाई है। फिर गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, लंबा वाक़या इनका, जनाजा उठाया गया, बिल्कुल वजन कोई नहीं था, बिल्कुल वजन नहीं था। तो मुनाफिक बकवास करने लगे, कहने लगे इसका तो वजन ही कोई नहीं, ये तो मुनाफिक है। तो हमारे नबी ने फरमाया इनको कहो अपनी ज़बानें बंद करें, साथ तुम्हारे कंधे पे नहीं जा रहा, ये फरिश्तों के कंधों पे जा रहा है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले कि आज गुलाम मुस्तफा दुनिया से जा रहा है, आशिक मुस्तफा दुनिया से जा रहा है। आप तबूक में थे, तबूक में सूरज निकला, चमक बहुत ज्यादा। आपने जिब्रील से पूछा आज सूरज में चमक बहुत ज्यादा है, कहा रसूल अल्लाह ये सूरज की चमक नहीं है, आपके एक सहाबी है मुआविया बिन मुआविया, उनका मदीने में इंतकाल हो गया है, और उनके जनाजे में 2 सफ़े आसमान से फरिश्तों की उतारी गई हैं, और हर सफ में 70,000 फरिश्ता था, हर सफ में। फिर वो कहने लगे या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे, आप जनाजा पढ़ाएंगे? आपने फरमाया मैं तो तबूक में हूँ, वो मदीने में है, कैसे जनाजा पढ़ाऊंगा? कहा या रसूल अल्लाह आप सफ़े बनाएं, सारे पर्दे हटा के जनाजा सामने मैं करता हूँ। आपने साहबा से कहा सफ़े बनाओ, सफ़े बनाएंगे, आप आगे खड़े हो गए, जनाजा सामने लाया गया, पढ़ा दिया। फिर आपने पूछा जिब्रील से कौन सी ऐसी इसकी नेकी थी कि मुझसे जनाजा पढ़वाया जा रहा है, सफ़े के सफ़े आसमान से फरिश्तों की उतर रही हैं। तो हमारे नबी से जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका ये जो सहाबी है ये सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल
लहू कुफुवन अहद, इस सूरत को ये कसरत से पढ़ा करता था। इसलिए अल्लाह ने इसके जनाजे में 1,40,000 फरिश्ते उतारे हैं और जनाजा आग से पढ़वाया जा रहा है। ऐसे आशिक दुनिया में आए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में बैठे थे। करबला के मैदान में यहाँ घोड़ी के नीचे ऐसे तलवार रखी हुई, ऐसे करके बैठे थे, यूं तलवार घोड़ी के नीचे और ऐसे करके बैठे। तो बैठे बैठे नींद आ गई। तो शिमर ने सामने से देखा तो बकवास करने लगा, कहने लगा देखो देखो हम इसको शहीद करने वाले हैं और ये बैठा नींद कर रहा है, ये बैठा नींद कर रहा है। तो इमाम हुसैन की आंख खोली तो फरमाया, ओ बदबख्त, तू हमें मौत से डराता है? मौत तो हमारे लिए महबूब चीज है, मौत तो हमारे लिए महबूब है, तू हमें मौत से डराता है? मौत तेरे जैसे बदबख्तों के लिए कोई होगी खौफनाक चीज, हमारे लिए तो मौत तोहफा है। फिर जब मुस्कुराए तो बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई ये कौन सा मुस्कुराने का वक्त है, ये कौन सा मुस्कुराने का वक्त है? तो फरमाया, ये जो अभी नींद आई है ना, ये जो झटका लगा है, तो मेरा नाना मेरे ख्वाब में आया है और मुझसे कहा, बेटा मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ, हमारे पास आने की तैयारी करो। ये आशिक थे, ये आशिक थे, ये आशिक थे, ये आशिक थे, जिन्होंने सब कुछ लुटाया, सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ जो गया लगा दिया। तो हमने अल्लाह के लिए किया क्या है? हमने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? हमने अल्लाह के लिए किया क्या है? अल्लाह के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? अल्लाह के लिए क्या किया है? तो हम तो अल्लाह के लिए सर नहीं झुका सकते। मुझे कितने भाई कहते हैं कि जी मुआशरत में बात करो, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, सूद बहुत खाते हैं, रिश्वत बहुत खाते हैं, हेरा फेरियां बहुत करते हैं, एक दूसरे के गिले बहुत करते हैं, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। तो मैं सोचता हूँ, कल भी एक भाई से बात हो रही थी मोबाइल पे, तो मैंने कहा भाई जो बातें आप कह रहे हो, ऐसे काम करने के लिए इतना ईमान की जरूरत है, नमाज पढ़ने के लिए इतना ईमान की जरूरत है। अभी तो हमारे पास इतना ईमान नहीं है कि हम नमाज पढ़ सकें, तो इतना ईमान कहां से आएगा? झूठ से बचने के लिए, सूद से बचने के लिए, रिश्वत से बचने के लिए, ज़िना शराब से बचने के लिए तो बहुत सा ईमान चाहिए जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जो इंसान अमल करता है ये इल्म की ताकत से अमल नहीं करता, ये ईमान की ताकत से अमल करता है। जितना ईमान ताकतवर होगा उतना अमल ताकतवर होगा। इल्म नहीं, सारे चोरों से जाके पूछो चोरी करना क्या है, कहेंगे गुनाह है। सारे ज़ालियों से पूछो ज़िना करना क्या है, कहेंगे गुनाह है। सारे शराबियों से पूछो, सारे कहेंगे शराब पीना गुनाह है। फिर क्यों पी रहे हैं? ईमान कमजोर हो गया। जब ईमान ताकतवर बनेगा फिर औरत पर्दा करेगी। जब ईमान ताकतवर बनेगा फिर झूठ छोड़ेगा, फिर रिश्वत छोड़ेगा, फिर हराम छोड़ेगा, फिर इसको कब्र याद आएगी, फिर इसको क़यामत याद आएगी, फिर इसको क़यामत का मंजर याद आएगा, फिर इसको अल्लाह के नबी के सामने खड़ा होना याद आएगा, फिर अल्लाह के सामने हिसाब किताब इसको याद आएगा। अभी ना अल्लाह याद है, ना अल्लाह का रसूल याद है, ना जन्नत याद है, ना जहन्नम याद है। तो इन्होंने खानगढ़ को सब कुछ समझा हुआ है। तो इस खानगढ़ में जब इन्होंने इसको सब कुछ समझा, मैं मुल्तान में बैठा था, एक दोस्त है, कहने लगे आओ एक आपको कोठी दिखाते हैं। मैंने कहा चलो, आप भी कोठियां बनाते हो तो कह आओ आपको एक कोठी दिखाएं। मैंने कहा चलो। तो हम गए कासम बेला, मुल्तान में एक इलाके का नाम है। हम उस तरफ गए तो उन्होंने एक कोठी दिखाई जिसको बनाने वाले मिस्त्री मजदूरों ने 7 करोड़ रुपया लिया है। 7 करोड़, बाकी खर्चा इसके अलावा है। तो वहां मैंने थोड़ी सी देर बात की। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो बंदा इस घर में रहता है उसका दिल करेगा मैं कब्रिस्तान में जाऊं? उसका दिल करेगा मैं खड्डे में जाऊं? खड्डे के अंदर फिर खड्डा। दुनिया के चस्कों ने हमें मौत बुला दी है।
शहजादे और जन्नत के दुल्हे हजरत इमाम हसन और हुसैन, दोनों भाई जन्नत के नौजवानों के सरदार जब हार लेके खड़े होंगे और इस्तिकबाल करेंगे, जरा उसको भी तो कोई सामने रखता, उसको भी तो कोई सोचता। जरा सोचो सोचो, अगर रमजान आ रहा है, मेरे नबी ने फरमाया जो मेरा उम्मती किसी को रोजा इफ्तार करा दे, इफ्तार करा दे, किस चीज से, किस चीज से, मुर्गे से नहीं, गोश्त से नहीं, किस चीज से, पानी का घूंट पिला दे, लस्सी पिला दे, आपने फरमाया दूध पिला दे, इससे किसी को रोजा इफ्तार करा दे, तो आपने फरमाया उस रोजा इफ्तार कराने वाले बंदे को अल्लाह क़यामत के दिन मेरे हौज से ऐसा पानी पिलाएगा कि फिर जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। वो तो पिएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ वो पानी छोड़ो, वो गिलास छोड़ो, वो बर्तन छोड़ो, जिन हाथों से अल्लाह का रसूल वो पानी पिलाएगा वो हाथ कैसे होंगे, वो हाथ कैसे थे। फिर एक बार घर में आए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आटा गूंद रही थी, रोटी लगा रही थी, आपने फरमाया आयशा एक रोटी मुझे पकड़ा, उन्होंने पकड़ाई, हमारे नबी ने ऐसे किया, तंदूर में लगा दी, आप अंदर चले गए। अब अम्मा जान कभी अंदर आती हैं, कभी बाहर आती हैं, कभी अंदर आती हैं, कभी बाहर आती हैं। आपने फरमाया आयशा क्या बात है? या रसूल अल्लाह सारी रोटियां पक गई हैं, पर वो वाली रोटी नहीं पक रही जिसको आपने हाथ लगाए। तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा ये तो दुनिया की आग है, जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला। तो मेरे हाथों से जब अल्लाह का रसूल जान पिलाएगा, एक सहाबी के सर पे आपने ऐसे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, तो उन्होंने कसम उठा ली कि अब मौत तक मैं ये बाल नहीं कटवाऊंगा कि इन बालों को दो जहान के सरदार के हाथ लग गए। अब कब्र में ये बाल साथ लेके जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा तो ये बाल साथ होंगे। जब इन हाथों से फिर ये तो मोहम्मद मुस्तफा है। जरा अगली सुनो, अगली जो दुनिया में गंदी शराब से बचेगा, इस रात में शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होती, शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होती, शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होती। मैं तो मुल्तान से आता हूँ, बार बार इधर से गुजर जाता हूँ, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों जब इनकी शादी पे आया हूँ तो एक इलाके में गया हूँ, वहां वो मुझे ले गए, फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि लोग किस तरह यहाँ शराबें पीते हैं, बाग में जाके कैसे शराबें पीते हैं। अल्लाह की कसम अगर इस जमीन के बस में होता ये फट जाती, आसमान के बस में होता ये फट जाता। हाँ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनो, मौलाना साहब बैठे हैं, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत आती है, रोजाना 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 फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे, हम उधर गए, हम मजीद जिना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम शराब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेपर्दगी आवारगी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं। ये जमीन कहती है, जमीन या अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं। समंदर कहता है या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इनको गर्क कर दूं। सुनो 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 सुनो, अल्लाह क्या कहता है जिसको हम नाराज कर रहे होते हैं, वो अल्लाह क्या कहता है, ऐ जमीन, ऐ आसमान, ऐ फरिश्तों, ऐ समंदरों, तुमने पैदा किया है मेरे बंदे को, अगर तुमने पैदा किया है तो जाओ जाके खत्म कर दो, अगर मैंने पैदा किया है तो फिर दरमियान में दखल मत दो, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं अपने बंदे की तौबा का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन में आके तौबा करेगा कबूल करूंगा, जिस रात में आके तौबा करेगा कबूल करूंगा। वो ऐसा करीम अल्लाह है, ऐसा मेहरबान अल्लाह है, और ऐसा प्यारा हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके गुलाम बन जाओ। फिर मेरा अल्लाह कहता है दुनिया की गंदी शराब से बचो बचो बचो। अब कोई बात है ना, इधर से हम सुनाते हैं, तुम इधर से सुनते हो, अंदर में तो उतारने का आला हमारे पास है नहीं, बस में नहीं है, बस में होता तो यहां से किसी को बाहर निकलने ना देते, जब तक पक्की तौबा ना करता, अपने
दूंगा। इतनी गंदी चीज है शराब, और आज का मुसलमान बड़े तकब्बुर के साथ भर भर के पीता है। पानी पानी पिलावे हुए, पानी पिला है जरा, पानी का इंतजाम कीते हुए कहां से अल्फाज ले जाए हैं। अल्लाह का वास्ता है, अगर कोई ऐसा है तो आज तौबा करो, आज तौबा करो, सब्र करो, सह जाओ, पी जाओ, बर्दाश्त कर जाओ। जन्नत में फिर मेरा अल्लाह कहीं फरिश्ते भर के पिलाएंगे, कहीं नौकर भर के पिलाएंगे, और कहीं मेरा अल्लाह खुद अपने हाथों से जाम भर भर के पिलाएगा। पी मेरा बंदा, पी मेरा बंदा, पी मेरा बंदा। ओए याद रखो, नमाज रोजे का नाम दीन नहीं है, सिर्फ नमाज रोजे का नाम दीन नहीं है, सिर्फ मस्जिद में खर्च कर देने का नाम दीन नहीं है। एक आदमी करोड़ रुपया मस्जिद में दे दे, खुद नमाज ना पढ़े, ये करोड़ रुपया इसको नहीं बचाएगा, ये नहीं बचाएगा, ये नहीं बचाएगा। असल की तरफ आओ, हकीकत की तरफ आओ। इस रात में शराब पीने वाले की बख्शिश कोई नहीं है। दूसरा आदमी जिसकी आज बख्शिश नहीं, ये शलवार टखनों से नीचे रखने वाला, दो गुना बेलज्जत है, बेलज्जत गुनाह है, दो गुना। जरा ध्यान से सुने, दो गुना बेलज्जत, बेलज्जत गुनाह है। एक दाढ़ी कटवाना, ये बेलज्जत गुनाह है। दाढ़ी कटा के कौन सी लज्जत मिल जाती है? ये बेलज्जत गुनाह है, और 24 घंटे का गुनाह है। आप सो रहे हो फिर भी लिखा जा रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो, ये गुनाह फिर भी लिखा जा रहा है। ये ऐसा गुनाह है दाढ़ी कटवाना। और थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना, फिर ये कलमा पढ़ने वाले के अल्फाज सुनना, जरा क्या कहते हैं? वो सिंह मैं तो हुण इंसान ही नहीं लगता खड़ा, मैं तो हुण इंसान ही नहीं लगता खड़ा। ताजा उतरा फिर आके बड़ा आगे हुण कोई इंसान वाली शक्ल चाया। जरा मुफ्तिया को बन के पूछो, ये आखिर तो बात कोई अंदर ईमान बाकी बच्चा भी है या कोई ना? और गलती कर रहे हो, गलती को गलती तो समझो, गलती को गलती तो समझो, गलती को गलती तो गलती भी ना समझना, गलत को गलत भी ना समझना। ये बेलज्जत गुनाह है। और बूढ़े हो गए हैं, सफेद बाल आ गए हैं, फिर भी कटवा रहे हैं, फिर भी कटवा रहे हैं। क्या अब मैं आपको ठीक नहीं लग रहा? ये गंदी शक्ल लग रही है। अल्लाह के नबी ने क़यामत के दिन इतना कह दिया, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं था? क्या तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं थी? ये बेलज्जत गुनाह है। और दूसरा शलवार टखनों से नीचे रखना, ये बेलज्जत गुनाह है, ये बेलज्जत गुनाह है, ये बेलज्जत गुनाह। उल्टा काम हो गया। और तुमको हुक्म मिला था कि तुमने नीचे रखनी है, उन्होंने ऊपर कर दी है। मर्दों को हुक्म मिला था तुमने ऊपर रखनी है, इन्होंने नीचे कर दी है। शलवार के अंदर जा रही हो, शलवार जूती के अंदर जा रही होती है, और औरतों के लिए हुक्म था कि तुमने नीचे रखनी है। जिस औरत की नमाज में शलवार यहाँ गिट्टे से थोड़ी सी ऊपर हो जाए, इतना ऊपर हो जाए कि 3 दफा सुबहान अल्लाह कहना दे, इतनी देर में, जितनी देर में 3 दफा सुबहान अल्लाह कहते हैं। अगर इतनी देर में, जरा बहने भी गौर से सुने, आप भी सुनो, घर में जाकर बताना, इतनी देर में शलवार ये ऊपर हो गई, यहाँ हो गई, ये गिट्टा है, नमाज में शलवार यहाँ होनी चाहिए, औरतों के लिए यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ये देख रहे हो। अगर ये इतनी देर में ये ऊपर हो गई, यहाँ कितनी देर? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी देर में ये शलवार ऊपर रही तो नमाज खत्म हो गई, नमाज टूट गई है। जी हाँ, ये देख रहे हो, औरत के लिए हुक्म है, औरत के लिए। ये गिट्टा देख रहे हो, यहाँ बाजू होना चाहिए नमाज में, यहाँ